Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are well. As I always ask you, and the most important, my suggestion always for you all is to do the hard work. And I hope you all are doing your work. The topic which I am going to discuss with you today is about the perceptual processes. So the topic is perceptual processes. This is our topic, perceptual processes. So children, here the word came the perception. Perceptual processes ये topic है हमारा, and here the term came the perception. Perception क्या है? Children, you know that sensation is the information which we receive from our sense organ. Whatever the information which we receive from our sense organ, it is known as sensation. And the interpretation of that information, and when we assign meaning to that information, so that is perception. Sensation क्या है? जो भी सेंस ऑर्गन हमें इंफॉर्मेशन दे रही है तो हमें सेंसेशन होता है. अब उस इंफॉर्मेशन को जब हम कोई मीनिंग देते हैं या हम उनका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है परसेप्शन. तो दो चीजें हैं, सेंसेशन एंड परसेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, if anything pinch on your hand, so your skin, which is a sense organ, it receives the information of the pinch, and the meaning which you give it to it, that mosquito bite or anything else pinch, so that is a perception. I hope this is clear to you all, the difference between the sensation and the perception. Children, I hope you understand about the difference between the sensation and the perception. You understand about what is sensation and you also understand about what is perception. There is a meaning of perception, the process by which we recognize, interpret or give meaning to the information provided by the sense organ is called perception. So perception क्या है? The process by which we are able to recognize and interpret and give meaning to the information which we receive from our sense organ, it is known as perception. Perception के कुछ processing approach हैं, like how we identify an object. Do we identify a dog because we have first recognized its furry coat, its foreleg, its eyes, ear and so on, or do we recognize this different part because we have first identified a dog? It was trying to say that whenever you see an object, how you see the object? You see the object as a whole or you see the object into a parts. Like when you see a dog, so you see the dog as a whole or you see the features of a dog. Like dog furries or dog legs, eyes, ear, आप कैसे देखते हो? So that is also dependent. So that decide your processing. Means whenever you are doing the perception, whenever you are doing anything, how you are doing it. आप कैसे processing कर रहे हैं? तो processing दो तरीके से होती हैं, bottom up processing and top down processing. Processing दो तरीके से होती हैं, bottom up and top down. Bottom up and top down. ठीक है, दो तरीके से प्रोसेसिंग होती हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन. बॉटम अप प्रोसेसिंग मीन्स basically the idea that recognition process began from the parts which serve as the basis for the recognition of the whole.
is known as bottom-up processing. Means first we see the parts and then we go into the whole. That is a bottom-up processing. Bottom-up processing क्या है? Parts देखते हैं फिर whole में जाते हैं. Basically moving from parts to whole, and it is moving from whole to parts. ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग में और टॉप डाउन में. हम दो तरीके से प्रोसेसिंग करते हैं. एक होता है हम किसी भी चीज़ को के पार्ट्स को देखते हैं फिर उसको होल देखते हैं. एक होता है हम लोग उसके पूरे होल कंसेप्ट को देखते हैं फिर उसके पार्ट्स को देखते हैं. बॉटम अप प्रोसेसिंग यानी नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं और टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं. तो ये दो तरीके से प्रोसेसिंग होती है. Top down processing, the notion that recognition process begin from the whole and which lead to the identification of its various component is known as top down processing. The bottom up approach may emphasize on the feature of stimuli in perception and consider the perception as a process of mental construction. The top down in contrast to the bottom up processing, जो टॉप डाउन होता है, इट विल एम्फसाइज ऑन द परसीवर एंड कंसिडर परसेप्शन एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टिमुलाई. So in order to say that the bottom up processing, when you do the processing of the bottom up, you see the things in a parts, then you go into the whole. But when you do the top down processing, you see the things as a whole, then you go into the part. तब आप पार्ट्स में जाते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक जो डॉट भी था, डॉट का भी एग्जाम्पल लिया था. अगर हम लोग बॉटम अप प्रोसेसिंग करेंगे तो हम लोग पहले डॉट के फीचर्स देखेंगे फिर एज अ होल डॉट देखेंगे. पर अगर इफ वी डू द टॉप डाउन प्रोसेसिंग तो हम लोग डॉट को एज अ होल देखेंगे देन हम उसके पार्ट्स देखेंगे. तो ये परसेप्शन के प्रोसेसिंग अप्रोच है. ठीक है, परसेप्शन इस तरीके से भी होता है. अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि परसेप्शन को क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं. बेसिकली परसीवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं. व्हाट आर द परसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, परसीवर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमें ये पढ़ना है आज. परसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, परसीवर के भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, परसीवर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं. नाउ ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट जस्ट मैकेनिकल एंड पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. दे आर क्रिएटिव बीइंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन देयर ओन वे. In this process, their motivation, their expectation, their cultural knowledge, their past experiences, their memory, as well as values, belief, and attitude play an important role in giving meaning to the external world. Yes, children, it is very true that we human beings are not an passive recipient. हम लोग ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ कोई कैसे भी दे रहा है हम लोग सिर्फ ले लेते हैं. ऐसा नहीं करते हम लोग. हम लोग अपनी खुद की जो नॉलेज है, अपना खुद का जो एक्सपेक्टेशन है, हमारे कल्चर बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं. तो इट्स नॉट ओनली डैट कि हम अपने जो भी चीज़ें हमें दी जा रही हैं हम उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. हमारे खुद के भी एक्सपीरियंसेस, हमारे खुद के नॉलेज भी उनको गवर्न करते हैं. ठीक है, सो इट चेंज द मीनिंग. फिर क्या होती है, मीनिंग चेंज हो जाती है, इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या चीज़ें हैं, क्या होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है परसीवर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन को. तो सबसे पहले आएगा मोटिवेशन. ठीक है, सबसे फर्स्ट में आएंगे मोटिवेशन. परसीवर का मोटिवेशन बहुत इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन को. ठीक है, परसीवर का मोटिवेशन. द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ ए पर्सन और परसीवर strongly influences his or her perception. People want to fulfill their needs and desire through various means.
One way to do this is to perceive objects in a picture as something that will satisfy their need. It was trying to say that पर्सन का जो नीड होता है वो बहुत हद तक पर्सन के परसेप्शन को अफेक्ट करता है। चिल्ड्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानने के लिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। यू शुड बी वेरी फोकस। हम लोग परसेप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। परसेप्शन का मतलब होता है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन ने हमें दिया और उसका हम कोई मीनिंग निकालते हैं, उसका कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, परसेप्शन करते हैं। अब परसेप्शन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, बॉटम अप भी कर सकते हैं, टॉप डाउन, यानी पार्ट से होल में जा सकते हैं और होल में भी पार्ट्स में आ सकते हैं। देन हम जैसा परसीव करते हैं वो बहुत हद तक इफेक्ट होता है हमारे खुद के एक्सपीरियंस से, हमारा खुद का कल्चर बैकग्राउंड से, हमारे खुद के मोटिवेशन से, हमारे खुद के वैल्यूज़ और बिलीफ से, जिनमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं अभी मोटिवेशन। यस चिल्ड्रन, मोटिवेशन की जब भी बात होती है इट टॉक्स अबाउट द नीड। मोटिवेशन जब भी हम लोग बोलेंगे इट टॉक्स अबाउट द नीड के बारे में बात होगी। ठीक है ना, नीड की अगर बात हो रही है अगर, तो फिर इसमें क्या पॉइंट है, लाइक आपका जैसा नीड होता है आप उसी अकॉर्डिंगली चीज़ों को परसीव करते हो। ठीक है, आपका परसेप्शन भी हमारा परसेप्शन भी, यू कैन से दैट इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू अवर नीड। अवर परसेप्शन चेंज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। ओके, experiments were conducted to examine the influence of hunger on perception। हंगर का क्या इन्फ्लुएंस होता है परसेप्शन पे, तो when hungry person was shown ambiguous picture they were found to perceive them as picture of food object more often than non-hungry person। मीन्स आप देखो कितना अमेजिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हंग्री पर्सन पे और नॉन हंग्री पर्सन पे, और ये देखा गया कि जो और उनको एक अनएम्बिगुअस पिक्चर दिया गया। अनएम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर पिक्चर, जैसे कुछ ब्लर सा पिक्चर दे दिया गया, कुछ भी बना के, कोई भी ड्राइंग बना के, अजीब सा कुछ भी ड्राइंग बना के दे दिया, तो ये देखा गया कि जो हंग्री पर्सन थे वो उसमें उनको कोई फूड आइटम दिख रहा था, वो परसेप्शन कर रहे थे फूड आइटम का। ठीक है, और जो नॉन हंग्री थे वो कुछ भी परसीव नहीं कर रहे थे। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि मोटिवेशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे परसेप्शन पे। हमारी जैसी नीड होती है हम उसी अकॉर्डिंग मीनिंग उसकी निकालते हैं, उसी अकॉर्डिंग उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेशन या जिसे कहते हैं परसेप्चुअल सेट, इसे परसेप्चुअल सेट भी कहते हैं। एक्सपेक्टेशन भी बहुत डिटरमाइन करता है हमारे परसेप्शन को। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही लोग के ही क्लास में बच्चों, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल, लाइक आप ही के क्लास में जैसे जस्ट अज्यूम एंड जस्ट इमेजिन दैट ऑलरेडी इन फॉर एवरी पीरियड्स द टीचर्स वर असाइन्ड, like first period will be this like Ruhi ma'am will take, the second period will be the Ruma ma'am will take, means particular teachers were assigned for that particular period. So as the bell rang you expected that this teacher will come, so obviously your perception will be according to the your expectation। हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं हमारा परसेप्शन भी वैसे ही होता है। इन केस अनदर टीचर विल कम, इन कोई और टीचर आ जाता है, वो पर्टिकुलर टीचर नहीं आता है, फिर भी आपको लगता है कि वही है, कुछ टाइम बाद आपको समझ में आता है ओके दिस इज चेंज। सो एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट वी माइट परसीव इन अ गिवन सिचुएशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन। दिस फेनोमेना ऑफ परसेप्चुअल फैमिलियराइजेशन और परसेप्चुअल जनरलाइजेशन reflect a strong tendency to see what we expect to see even when the results do not accurately reflect. For example, if your milkman deliver your milk daily at about 5:30 a.m., any knocking at the door around that time is likely to be perceived as the presence of the milkman even if it is someone else. Okay, one of the example is also mentioned
दैट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके घर मिल्कमैन आता है तो अगर कोई भी नॉकिंग होगी तो आपको यही लगेगा कि मिल्कमैन वॉज देयर। सो हमारा जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है, हमारा परसेप्शन भी वैसे ही रहता है। जैसे अगर आपको बर्थडेज में कोई गिफ्ट भी मिलते हैं तो आप कुछ एक्सपेक्टेड रहता था, अच्छा ओके मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप परसीव भी वही करने लगते हो, अच्छा यही हो रहा है इसमें। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल चिल्ड्रेन, you understand about the motivation and you understand about the second aspect, which is the expectation. Now the third is cognitive style. The third characteristics of the perceiver is कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव स्टाइल भी बहुत डिटरमाइन करता है आपके परसेप्शन को कि आपका कॉग्निटिव स्टाइल कैसा होगा। कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है, ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका परसेप्शन कैसा होगा। Cognitive style refers to a consistent way of dealing with our environment. It significantly affects the way we perceive the environment. There are several cognitive styles that people use in perceiving their environment. One most extensively used is means style भी बहुत तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो तरीके के स्टाइल होते हैं, एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट और वन इज फील्ड डिपेंडेंट। One is field independent, okay, independent, okay, and second is field dependent, independent, and second is field independent, and second is field dependent, ठीक है। ये दो होते हैं, एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट होता है और एक होता है फील्ड डिपेंडेंट। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, ठीक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दे होल्ड? इट हैज बीन फाउंड दैट field dependent people perceive the external world in its totality, that is in a global or holistic manner. On the other hand, field independent people perceive the external world by breaking into smaller units, that is in analytic or differentiated manner. तो बेसिकली जो फील्ड डिपेंडेंट होते हैं यानी ये पर्सन ये परसीव करते हैं किसी भी चीज को एज अ ग्लोबल या होल, यानी होल में परसीव करते हैं, होल में ये परसीव करते हैं, ये डब्ल्यू की बात हो रही है यहाँ। और फील्ड इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो पार्ट्स में परसीव करते हैं, ठीक है, पार्ट्स देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। डिपेंडेंट वाले होल की बात करते हैं और इंडिपेंडेंट वाले पार्ट्स की बात करते हैं। फील्ड जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो होल यानी होलिस्टिक मैनर यानी कोई भी चीज़ को एज अ होल देखते हैं, और ये जो होते हैं बहुत ही एनालिटिक होते हैं, ये पार्ट्स, ये ऐसे पर्सन को जिनकी इंडिपेंडेंट स्टाइल होती है, ऐसे पर्सन को इंटेलिजेंट भी बहुत कहा जाता है, क्योंकि वो माइन्यूट चीज़ें देख लेते हैं जो ये फील्ड डिपेंडेंट वाले नहीं देख सकते, ठीक है, ये लोग नहीं देख पाते, बट इंडिपेंडेंट वाले लोग देख सकते हैं। इसलिए यू कैन कोरिलेट द आई विद द इंटेलिजेंस ऑल्सो। Okay, so this is the difference between, so this also influences the perception. Like what is your cognitive style? Either you are a field independent person or either you are a field dependent person. आप अगर field dependent person होगे तो आपका perception as a whole होगा, अगर आप field independent person होगे तो आपका perception as a parts होगा। तो आप कैसे हो ये totally depend करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपकी कॉग्निटिव स्टाइल ऑल्सो डिटरमाइन द पर्सन्स परसेप्शन। सो चिल्ड्रेन, यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, हाउ द पर्सन्स expectation is influencing the perception, and how the cognitive style is influencing the perception. So these are the things. Now the last one is the cultural background. पर्सन का जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है वो भी इन्फ्लुएंस करता है परसेप्शन को। जिस भी कल्चर से वो पर्सन आ रहा है उसका इन्वायरमेंट कैसा है वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है हमारे परसेप्शन को।
The next point is cultural background, cultural बैकग्राउंड और हमारा एक्सपीरियंस, दोनों चीजें इसमें, कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, ये दोनों कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये भी बहुत डिटरमाइन करता है हमारे परसेप्शन को. Different experiences and learning opportunities available to people in different culture setting also influences their perception. People coming from a pictureless environment fail to recognize objects in picture. कहने का मतलब ये है बच्चों ओवरऑल कि हम जिस भी इन्वायरमेंट से आ रहे होते हैं हमारा परसेप्शन उसी के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई और चेंज होता है. हमें जिस तरह का माहौल मिला, जिस तरह की इन्वायरमेंट मिली, जिस तरह का हमारा एक्सपीरियंस हुआ, हमारी लर्निंग हुई, वो हमारे परसेप्शन को गवर्न करता है. अंडरस्टूड? लाइक for example, the person who do not have seen any of the pictures in their life, कोई ऐसे इन्वायरमेंट से आया जहाँ पे कभी उसने कोई पिक्चर देखा ही नहीं, कभी कोई इमेज देखा नहीं, तो उसके लिए he is unable to recognize any of the pictures or any of the images related to that one. सो जो उस बैकग्राउंड से रहा ही नहीं है, उसको उस चीज़ों की एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो उन्हें नहीं कर सकता. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट. हडसन की इसमें स्टडी थी, बहुत फेमस है कल्चर बैकग्राउंड में, HUDSON. हडसन इज अ नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट. इनकी स्टडी थी इसमें. व्हाट इज द स्टडी? हडसन स्टडी द परसेप्शन ऑफ पिक्चर्स बाय अफ्रीकन सब्जेक्ट्स एंड नोटेड सेवरल डिफिकल्टी. हडसन ने क्या किया? अफ्रीकन सब्जेक्ट्स पे स्टडी किया और ये देखा कि उनको बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी. किस तरह की डिफिकल्टीज हो रही थी? Many of them were not unable to identify objects depicted in the pictures like antelope, spear. ये सारे जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ इमेजेस थे जो कि अफ्रीकन सब्जेक्ट्स जो थे या अफ्रीकन कैंडिडेट्स जो थे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, उनको डिफिकल्टी हो रही थी. They also failed to perceive distance in picture and interpreted the pictures incorrectly. Eskimos have been found to make fine distinction among a variety of snow that we may be unable to notice. जैसे एस्किमो जो होते हैं वो स्नो में भी बेसिकली जिनको जिस तरीके की लर्निंग होती है, जिस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, दे वर मास्टर्ड इन दैट वन. वी आर अनएबल टू डू दैट. फॉर एग्जाम्पल द फार्मर्स भी जो होते हैं, they know the minute things related to the farming which we are unable to tell about them. Okay, how to grow the soil, how to grow the plant, they know each and everything because they have the experience of that one, they have the learning of that one, and they are working in such area for a longer period of time. So they are able to identify, but we are not able to identify. So in this way, the cultural background, the culture in which we are living and our learning experiences very much determine our perception. So I hope children you understand about what is perception and how do we do the processing, what are the two processing approach in the perception,
And what are the perceiver characteristics which determine the perception? So we get to know that perceiver motivation level, perceiver expectation, perceiver cognitive style, as well as perceiver cultural background and experiences as well determine the perception. तो ये सारी चीजें परसेप्शंस को डिफाइन करती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है। यू शुड ऑल अंडरस्टैंड ऑल्सो अबाउट द सब प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन। सब प्रोसेस यानी परसेप्चुअल प्रोसेस कैसे गवर्न करता है, ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। सो सबसे पहले चिल्ड्रन, यू कैन सी हियर स्टिमुलस इज हियर। Stimulus, okay, stimulus is here and then it leads to the sensory receptor. Then here when you give the attention is required here. Then it goes into the CNS. ठीक है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लर्निंग, मेमोरी, और साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग। Then it leads to the perception. स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस की वजह से सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। रिसेप्टर वो हमारे बॉडी में कई जगह रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर बेसिकली द थिंग, द वन हु रिसीव, रिसेप्टर मीन्स हु रिसीव, तो सो वो हु रिसीव द सेंस ऑर्गन। सो सेंसरी रिसेप्टर यू कैन से दैट द सेंसरी स्टिमुलस होते हैं और सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं हमारे, वो उन्हें रिसीव करता है, उस स्टिमुलस को रिसीव करता है। सेंसरी ऑर्गन मेनली 5 होते हैं, ओके। सेंसेशन होता है हमारा विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, कैनेस्थेटिक, वेस्टिबुलर, ये सब हमारे सेंसेशन। मेनली विजुअल और ऑडिटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टिमुलस जो है सेंसरी रिसेप्टर उन्हें रिसीव किया। यहाँ पे अगर आपने अटेंशन दे दिया, जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है सेंस ऑर्गन के थ्रू, हमारे रिसेप्टर्स ने जो रिसीव किया है, अब आपने यहाँ अगर अटेंशन दिया तो ये हमारे ब्रेन में जाएगा, हमारी लर्निंग होगी, हमारा मेमोरी होगा, हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगे, और भी जो भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं लर्निंग और मेमोरी के अलावा, देन हमें परसेप्शन होगा। ये कुछ सब प्रोसेसेस हैं परसेप्शन के विच यू ऑल शुड नो। आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सो चिल्ड्रन, आई होप आई हैव टीच यू maximum about the perception. You should learn the meaning also. What is the meaning of perception? You should understand about the processes. Okay, processes आप अच्छे से समझ लेंगे। You will make this diagram. If you want to write it down, you can write it down, or you can take a screenshot also at that time while playing the video. And I just suggest you that make your revisions properly and complete your work on the time and make your notes. So I hope the topics are clear to you. We have discussed about what is perception, what is the meaning of perception, how it is different from the sensation, sensation से वो कैसे different होता है,
किस तरीके की प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, बॉटम अप प्रोसेसिंग करते हैं, टॉप डाउन प्रोसेसिंग करते हैं, फिर हम लोग क्या प्रोसेस होता है सब प्रोसेस भी पढ़ा। फिर हम लोग ने ये भी पढ़ा कि कुछ परसीवर जो होता है, जो परसीव करता है, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि परसीवर का मोटिवेशन लेवल, परसीवर का कॉग्निटिव स्टाइल, परसीवर की एक्सपेक्टेशन और परसीवर की कल्चरल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अगर इफ़ यू फाइंड एनी ऑफ द डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू दिस वन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं से भी आपके माइंड में आता है तो यू विल आस्क इन द क्लासरूम। Thank you so much for carefully observing this one.